Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to study the 7th standard maths, chapter number 12, area and a perimeter, or perimeter and the area. Now the practice set 44 we are going to do. So before the practice set we are supposed to understand what is a perimeter and what is the एरिया. तो यहाँ पर जो है हमको ये समझना जरूरी है कि पेरीमीटर क्या होता है और किसी भी चीज का एरिया क्या होता है. तो यहाँ पर जो है आपको कुछ जो है हम फिगर्स ड्रॉ करके बताते हैं कि व्हाट इज द पेरीमीटर एंड व्हाट इज एन एरिया. ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक छोटा सा बैंगल है. आप ये बैंगल को देख सकते हैं. गेटिंग मी? सो दिस बैंगल इज अ क्लोज्ड फिगर. सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग आउट द पेरीमीटर we are supposed to go through the closed type of the. So now see here, to understand the perimeter I have drawn some of the shapes in front of you. So this is the first one, circle, then triangle, this is also the right angle triangle, then square, then hexagon and a rectangle. In all these 6 figures you have seen these all are the closed figures. Closed figures का मतलब क्या होता है कि ये figures जो है open नहीं है, कहीं से भी इनके edges जो है या corners जो है या sides जो है वो खुली भी नहीं है. तो the figures which are having closed ends or the edges are close together, so these are said to be the closed figure. तो जैसे कि अभी यहाँ पर for example a wire is there, this is the wire in front of you, है ना. तो ये wire जो है यहाँ पर ये जो है ये open figure है because it is forming a line. So like that way if I am turning and making a circle with this wire, so you can understand this is the closed फिगर. गेटिंग मी? तो ये जो है इस तरह से क्लोज्ड फिगर बनती है. या फिर अगर इस वायर से जो है आपके लिए यहाँ पर क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है ये रेक्टेंगुलर शेप बनता है वायर से. लाइक दिस वे द क्लोज्ड फिगर फॉर्म्स. तो यहाँ क्लोज्ड फिगर के लिए जो है जब भी हम किसी चीज का पेरीमीटर या फिर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमको ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि हमेशा हम उसको जो है किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, for a closed figure. We are not going to find out the perimeter and area for the open figures. Open figure जो पूरी तरह से खुली होती है. तो हमको open figure के लिए जो है perimeter और area find out करना ही नहीं है because we will not get the proper value for that. So that's why we are supposed to always take the perimeter and area for the closed figures. तो closed figure के लिए जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम सीखेंगे कि पेरीमीटर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. तो पेरीमीटर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ दिस इज द बैंगल इन फ्रंट ऑफ यू. आपने ये देखा कि ये बैंगल जो है दिस इज द बैंगल, इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से खाली है ना. ये सिर्फ आपको उसकी कॉर्नर्स यहाँ पर उसकी जो बाउंड्रीज है वो दिखाई दे रही है बैंगल की. दिस इज द बैंगल फॉर्मिंग अ सर्कल. गेटिंग मी? सो इफ आई एम कीपिंग दिस सर्कल ओवर हियर, दिस बैंगल ओवर हियर, you have seen that the lining of the bangle is differentiating in between the outer part and the inner part, है ना. ये जो outer part है बैंगल का ये वाला और inner part है बैंगल का ये वाला, ये जो है अलग से एक फिगर बनता है. तो यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि ये सारे पूरे के पूरी जो लाइन कवर अप हो रही है ये फिगर में, उस फिगर के लिए जो है यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो लेंथ ऑफ द ऑल द this circle is called as the perimeter. Similar way if I am telling you that the triangle is there, है ना. तो triangle का side 1 then side 2 and the side 3. Like this way triangle is having 3 sides, 1 2 and a 3. Getting me? So this all the 3 sides if have been added together means side 1 length of the side 1 will be added to the length of the side 2 and the length of the side 3. तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा क्या बन जाएगा, आपका perimeter बन जाएगा. So the perimeter is for the closed figure, any of a closed figure we can say that it will be the total sum of the all sides of the length, है ना. यानी जो भी जितनी भी है लेंथ है हर साइड की, उस सबको अगर हमने ऐड किए तो फिर जो है मेजरमेंट जो हमको मिलेगा वो एक्चुअली उस फिगर का पेरीमीटर होगा. तो यहाँ पर ये जो है ट्राइंगल, दिस वन इज द ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स. सो साइड 1, साइड 2 एंड द साइड 3 ऑल टुगेदर इट फॉर्म्स
by the addition of these all the three sides we will get the nothing but the perimeter. यहाँ पर ये जो है आपके पास right angle triangle दिया हुआ है. This is the first side, second side and the third side. Okay, so this is your height and the base and this is your diagonal. Getting me? So these all the three sides, length of these all the three sides will be going to add it together. So we will get the properly the what perimeter of this right angle triangle. Similar way, now अब जो है आपका स्क्वायर है, you know that in the square we are having all the sides as a equal one. ये जो है ये भी congruent है इसके और ये वाला भी जो है ये भी congruent रहेगा इसके. तो यानी स्क्वायर में 1 2 3 and 4 sides and all the 4 sides are congruent to each other. So hence we can say that 4 sides will be added together 4 times. है ना, हमको क्या करना है 4 साइड्स यानी चारों की चारों साइड्स को बार बार कितनी बार हम उसको चारों बार जो है ऐड करेंगे. तो यहाँ पर जो है हमको टोटल क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा. इसी तरह से यहाँ पर हेक्सागोन दिया है. हेक्सागोन में 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल साइड्स आर देयर. तो यहाँ पर इन सभी साइड्स को अगर हमने एक दूसरे से ऐड कर दिए तो जो हमको मिलेगा द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ द साइड विल बी नथिंग बट द टोटल पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर. है ना, तो यहाँ पर जो है पेरीमीटर का एक्चुअल मतलब क्या है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर की सारी साइड्स को ऐड कर देना. यानी पेरीमीटर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उस क्लोज्ड फिगर की सारी साइड्स को क्या कर दे, एक दूसरे के साथ टोटल करके ऐड कर दे. तो यहाँ पर जो है ये वाला, अब ये जो लास्ट है ये आपके पास रेक्टेंगल दिया है. अगेन द रेक्टेंगल इज हैविंग द 4 साइड्स बट द 2 साइड्स ऑफ द opposite one they are congruent to each other in the triangle rectangle. Similar way here also the 2 opposite sides are congruent. तो मतलब लेंथ जो है 2 टाइम्स रहेगी. तो ये दोनों जो लेंथ है वो congruent है and the width is also congruent to each other which is in front of each other. है ना, opposite to each other. तो यहाँ पर जो है ये भी यानी यहाँ पर आपकी जो दिया हुआ है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमने ऐड कर दिया, समझे. फिर ये वाला विड्थ और ये वाले विड्थ को भी हमने ऐड कर दिया. तो टोटल ऑल द 4 साइड्स इफ वी आर गोइंग टू गेट द टोटल सम ऑफ दीज ऑल द 4 साइड्स वी विल नथिंग बट गेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल लाइक दिस वे. तो यहाँ पर जो है पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी साइड की चारों जो है किसी भी क्लोज्ड फिगर की सारी साइड्स को टोटल सम करना यानी उसको ऐड कर देना, उस चीज का पेरीमीटर होता है. ठीक है, तो जैसे अभी आपके फॉर एग्जाम्पल यू ऑल आर सिटिंग इन अ रूम. है ना, आप जो है एक रूम में बैठ करके हमारा वीडियो देख रहे हो. तो आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम भी जो है आपका हो सकता है वो स्क्वायर हो या फिर आपका रूम जो है वो रेक्टेंगुलर हो. तो आपका जो रूम है वो फर्स्ट कॉर्नर से लेके सेकेंड कॉर्नर तक है. दिस इज द फर्स्ट लेंथ ऑफ अ फर्स्ट वॉल. है ना, यानी वॉल का यानी आपकी जो इन फ्रंट ऑफ वॉल है मतलब आपकी जो सामने की वॉल है उसका जो है फर्स्ट कॉर्नर से लेकर के लास्ट कॉर्नर तक के जो है पूरा जितना लेंथ रहेगा उसको आपके लिए फर्स्ट वॉल का क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा. है ना, फर्स्ट वॉल का लेंथ हो जाएगा. इसी तरह से आपके राइट हैंड साइड पर भी एक वॉल है और आपके लेफ्ट हैंड साइड पर भी. एंड देन यू आर हैविंग अ वन ऑफ अ वॉल एट योर बैक. गेटिंग मी? सो आपके चारों तरफ जो है पूरे रूम की वॉल्स है. ठीक है, तो इन वॉल्स की अगर टोटल लेंथ आपने निकाली यानी फर्स्ट वॉल का, then second wall ka, then third and the fourth wall. So that is what nothing but the perimeter of the room in which you are sitting and taking the lecture right now. Getting me? So like this way we have found the perimeter for the room. Now let us go to the area. What is mean by the area? Area जो होता है, एरिया के लिए हमको कॉन्सेप्ट लेना है कौन सा, फ्लोर का. आप जो है रूम में बैठे हो सकता है आप बेड पे बैठे होंगे, आप टेबल पे बैठे होंगे या फिर हो सकता है आप फ्लोर पर ही बैठ करके लेक्चर सुन रहे हो. तो ये जो है कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि अगर आपको किसी भी चीज का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया के लिए आपको कहाँ आना है, उस चीज के लिए ग्राउंड पे आना है. ग्राउंड मतलब आपके फ्लोर पर आना है. फ्लोर पर आने का मतलब ये है कि आप एक सरफेस को कवर अप कर रहे हो. सरफेस मतलब आपका जो ग्राउंड है ना वो एक एज अ सरफेस हो जाता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल
This is the hexagon, getting me? And I have said the hexagon is having a all together 6 sides, है ना? तो यहाँ पर जो है hexagon की all together 6 sides है. अब अगर hexagon के अंदर वाला ये पार्ट I have marked it, I have colored it, I have shaded it. तो ये जो है, ये इतना पार्ट जितना हेक्सागन के अंदर कवर अप होता है, ये पार्ट बाहर वाले पार्ट से बिल्कुल अलग है. तो ये पार्ट जो है आपका क्या हो गया है, हेक्सागन का एरिया हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है हेक्सागन का एरिया कवर अप होता है. Getting me? So the surface which is coming under the closed figure, how much space it is occupying, that is said to be the एरिया ऑफ दैट क्लोज्ड फिगर. समझ में आया? मतलब यहाँ पर पेरीमीटर जो था वो क्या था, टोटल, यानी किसी भी क्लोज्ड फिगर की जितनी भी साइड्स हैं उन सब का टोटल सम करना पेरीमीटर होता है. लेकिन उसी क्लोज्ड फिगर के लिए अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो क्लोज्ड फिगर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आपको उस चीज का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा. जैसे अभी ये हेक्सागन है, आई हैव कवर्ड इट. So how much part of the hexagon I have covered it, that much is the area of the total hexagon. समझ में आया? मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसे हाथ रख करके hexagon को छुपा रहे हैं, so you are unable to see the hexagon. That means what? Hexagon have covered some of a part, or my hand has covered the हेक्सागन, है ना? तो हेक्सागन को हमारे हाथ ने छुपा लिया है. मतलब क्या कि आप जो है उस चीज को देख नहीं पा रहे हो, तो यानी ये यहाँ का जो है एरिया ऑक्यूपाई हो गया है. गेटिंग मी? तो सिमिलर वे द हेक्सागन हैज कवर्ड सम ऑफ अ स्पेस, सो दैट स्पेस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर. लाइक दिस वे. नाउ हियर दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो तीनों साइड्स है, इसकी वजह से अंदर का पार्ट जो है वो अलग हो जाता है ये बाहर के पूरे टोटल पार्ट से, है ना? तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है आपको ये बता रहे हैं कि एरिया जो है वो कौन सा है, अंदर का ये अंदर वाला स्पेस है जो कि कहाँ आता है, इस क्लोज्ड फिगर के इनसाइड है. सो द area or the space inside the any of a closed figure be the area of that particular closed figure. ठीक है? तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पेरीमीटर और एरिया के लिए क्लियर होता है. नाउ विल मूव फर्दर विद द एक्सरसाइज नंबर 44 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द if the length and the breadth of a rectangle are doubled, then how many times the perimeter of the old rectangle will that of the new rectangle be. मतलब आपको क्या बता रहा है कि अगर कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को जो है क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो आपको ये बताना है कि ओल्ड रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर वो नए वाले पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर का कितना टर्म्स होगा. तो यहाँ पर जो है हमको क्या लिखना है कि पेरीमीटर जो है वो कितना है. हम यहाँ पर पेरीमीटर के फॉर्मूले से या पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है? तो यहाँ पर जो है टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वी रिक्वायर द वन ऑफ अ फिगर. यहाँ पर वन ऑफ अ रेक्टेंगल इज देयर, है ना? ये हमारे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स को ये ओल्ड वन है ना? आई एम राइटिंग हियर ओल्ड. गेटिंग मी? दिस इज द ओल्ड रेक्टेंगल विथ अस. नाउ हियर द लेंथ इज L if suppose, क्योंकि वैल्यू नहीं दिया है ना, so this is also becomes the length and this is what the B, this is what the B, that is breadth, है ना? तो लेंथ एंड ब्रेथ ये ओल्ड के लिए हो गया. अब जो है हमको यहाँ पर क्या दिया है कि इसकी जो लेंथ थी उसको डबल कर दिया गया और यहाँ पर जो था उसकी ब्रेथ उसको भी डबल कर दिया गया. तो लेंथ को अगर हमने डबल किए या ब्रेथ को डबल किए तो 2 into b, डबल का मतलब ट्वाइस कर देना. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर द 2b एंड दिस इज फॉर द 2l. Similar way this is also becoming 2l and this is also becoming 2b and this is for the new one, है ना? ये वाला. ठीक है? तो ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये ओल्ड वाला है जिसकी लेंथ अगर L है तो उसकी ब्रेथ भी B है. लेकिन इसी तरह से जो हमको नया मिलता है जब हमने इसको डबल कर दिए तो यानी ये वाला जो है न्यू वाला रेक्टेंगल बन रहा है. तो वो कौन सा बन रहा है? दिस इज द 2B with the length
of the 2b, है ना, and this is the new rectangle with the length of 2l. getting me? तो यहाँ पर ये जो है हमने बना लिए. अब हमको क्या बोला है कि आप बताइए कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है पेरीमीटर के लिए. समझा? मतलब पेरीमीटर जो है, इस वाले का पेरीमीटर यानी नए वाले का पेरीमीटर पुराने वाले के कितना रहेगा, हमको ये रिलेशनशिप बताना है. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट द length of the old rectangle be L and breadth be B. Okay, therefore for the new rectangle length will be, now how much it will be, doubled है ना, तो doubled का मतलब होता है 2 into L and the breadth कितना हो जाएगा breadth हमारा यहाँ पर, the breadth will be how much 2b. ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया. अब हमको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ना. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. तो हम यहाँ पर पेरीमीटर किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, पहले ओल्ड वाले के लिए. पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल. ओके, यहाँ पर तो क्या है ओल्ड वाला, 2 into L plus B. ओके फाइन. अब यहाँ पे 2 into L plus B ये हमारा आता है, हमने इसको 1 करके लिखा. नाउ अब जो है आधा हमारा बाकी है आगे का. अब इससे आगे जो है हम वो पार्ट सॉल्व करेंगे. So now we are going to find out the second part, that is perimeter of the new rectangle is equals to 2 into length plus breadth. ये फॉर्मूला है ना. तो यहाँ पर जो है एक्चुअली 2 into लेंथ प्लस ब्रेड की बजाय हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 into that is 2L है ना. हमारे पास यहाँ पे कितनी लेंथ थी, 2L थी, एंड देन 2B पहले ही है ना. एंड दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला से आता है ये. ठीक है, तो हमारा यहाँ जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है, फ्रॉम देयर वी हैव गेट दैट इज पेरीमीटर ऑफ the new rectangle is equals to, now 2. This is also I am removing outside because of the common है ना. हमने common की वजह से 2 common है ना, तो यहां से बाहर लिया और यहाँ पे L plus B लिखा. ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन बनता है नंबर 2. First we have written and then this is the second one, we have got the expression. Now तो यहाँ पर जो है perimeter of the new rectangle is equals to 2 into 2 into L plus B. अब ये जो है अगर हम ये कंपेयर करूं, ये वाला 2 into L plus B ये जो है फर्स्ट वाले यानी ओल्ड वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना. तो हम यहाँ पर दोनों को कंपैरिजन से किस तरह से लिखेंगे, बाय 1 and 2. Here what it is, perimeter of the new rectangle is equals to, now 2 into this one whole be the एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल है ना. तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ओल्ड
रेक्टेंगल। समझा? तो किस तरह से हमने बताया यहाँ पर कि पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी द 2 into पेरीमीटर ऑफ ओल्ड वन। तो यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है कि नए वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर ओल्ड वाले रेक्टेंगल के 2 टाइम्स रहेगा, है ना, ओल्ड वाले पेरीमीटर से 2 टाइम्स रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर of the new rectangle will be double, double, doubled the perimeter of old rectangle। इस तरह से हमारे ये फर्स्ट सम जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो है एक बार आपको बता दूं कि ये कंपैरिजन किस तरह से किए हैं। जब हम ये फर्स्ट वाला इक्वेशन देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमको यहाँ पर जो है आप जो है अपनी बुक में देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रब आउट हो चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला इक्वेशन इफ आई सी एंड देन द सेकेंड वन, सो आई एम कंपेयरिंग दीज टू। सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ओवर हियर? यहाँ पर 2 into L प्लस बी, 2 into L प्लस बी, ये जो यहाँ पर जितना पार्ट आपको अंडरलाइन करके दिए है ना, तो ये पार्ट में आपको ये बता रहे हैं कि 2 into L प्लस बी जो है वो फर्स्ट वाला यानी ओल्ड वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो यहाँ पर कंपेयर किए तो हमने इसीलिए यहाँ पर लिखे 2 into पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के बाद हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिखे कि अगर पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल वी आर राइटिंग, सो इट विल बी नथिंग बट द डबल ऑफ द प्रीवियस दैट इज ओल्ड रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, now for the second question, if the sides of a square is tripled, how many times the perimeter of the first square will that of the new square be? मतलब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि एक छोटा सा स्क्वायर है जिसके साइड्स को हमने यहाँ पर a लिया है, और यहाँ पर दूसरा वाला स्क्वायर है जिसकी साइड्स को 3a लिए। 3a क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि पहले वाले की साइड अगर a है यानी एक है तो उसका ट्रिपल टाइम्स मतलब 3 टाइम्स जो है वो सेकेंड वाले की साइड्स हो जाती है। दैट्स व्हाई आई हैव टू हियर 3 of a। गेटिंग मी? तो आपको क्या बोला है कि न्यू वाला जो रेक्टेंगल स्क्वायर है उसका पेरीमीटर छोटे वाले स्क्वायर के पेरीमीटर का कितना टाइम्स हो जाएगा वो बताना है। तो ये जो है पहले वाले की बिल्कुल सेम तरीके से है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द sides of old rectangle is equals to a, है ना? Then now the sides of new square, यहाँ पे रेक्टेंगल लिखे ना, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। What it is? Square. Square is equals to 3 into a, because it is said that tripled, है ना? tripled का मतलब होता है 3 times. Okay? तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे? Therefore, perimeter of the old square is equals to 4 into 3a. This is our first one. Okay, इसको इस तरह से रख लिए हमने। 4 into side that is 4 into a. सॉरी, यहाँ पर ये जो है हमारा ओल्ड वाला जो है 3a की बजाय सिर्फ और सिर्फ a है, तो 4 into a. ओके फाइन। तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाले का यानी ओल्ड वाले का क्या हो गया है? 4 into a. तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? पेरीमीटर फॉर द न्यू वन, है ना? पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर is equals to 4
इंटू 3 इंटू ए। ओके, यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की जरूरत है। हम 3 को पहले लिखेंगे, देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द 4 इंटू ए। अब ये 4 इंटू ए और यहाँ का 4 इंटू ए कॉमन दिख रहा है हमको, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा ये 2 है ना। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 मीन्स दिस वन। तो यहाँ पर 4a और ये वाला, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड स्क्वायर है ना। तो बाय 1 and 2, what it is given, perimeter of new square is equals to 3 into perimeter of old one, perimeter of old स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये जो है इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर विल बी द ट्रिपल टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सम जो है वो भी कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी है। यहाँ पर जो है सिर्फ आपको क्या करना है, पहले वाले स्क्वायर के लिए हमने साइड ए लिया, दूसरे वाले के लिए ट्रिपल टाइम्स है तो हमने 3a लिखा। फिर let us consider that the side of the old square is equals to a, and now the sides of the new square will be 3 into a. So the perimeter of the old square will be 4 into a, that is first one. This is our first expression. अब यहाँ जो है perimeter of the new square will be equals to 4 into 3 into a, है ना। तो that's why what I have did, I have took the 3 aside and with the 4 and a I have written together, है ना। 4 और a को हमने क्या किया, यहाँ से उठा के साथ में लिखा, तो ये 3 into 4 into a हो गया। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे अगर हम 1 को और 2 को, तो हमको ये पता चलता है कि 1 and 2 by comparing I have found that 4 into a will be actually the perimeter of the what, the first old square, है ना। तो ओल्ड स्क्वायर का पेरीमीटर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो वो हमने यहाँ पे कंपेयर करके लिखे, और इसलिए जो है पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये सम भी जो है कंप्लीट होता है। ठीक है।